ہے جب آپ کوئی پختہ ارادہ بھی کر دیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں سیدھی ڈگر کے اوپر چلتا ہوں، اگر میرا وے آف تھنکنگ، میرے سوچنے کی سمت وہ صحیح راہ کے اوپر ہے، تو کوئی بھی چیز مجھے گرا نہیں سکتی، اور خدا میرے لیے نیک ارادہ رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے خدا میرے لیے؟ نیک ارادہ۔ اگر ایک لفظ ہم لکھتے ہیں اردو میں فیصد، تو اگر فیصد کے اوپر والا ایک نقطہ اڑا دے، نیچے والے 2 نقطے غائب کر دیں، اور اس ایک نقطے کی بجائے وہاں پر 2 نقطے ڈال دی جائیں اور کاف اور صد، تو لفظ بن جاتا ہے کثرت۔ کیا لفظ بنتا ہے عرفان بھائی؟ کثرت۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی سٹڈی کے ساتھ، ایک نئے پختہ عزم کے ساتھ ہم پھر خدا کے کلام کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے نام کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جلال کا بادشاہ ہماری زندگیوں کے لیے کیا مقاصد رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلا حوالہ میری طرف سے متوجہ، مقدس پاک کلام کے پہلی عبارت، پہلی ہی کتاب میں سے، پیدائش کی کتاب، اس کا آخری باب، پیدائش کی کتاب اس کا آخری باب 50 اور اس کی 20 آیت سے ہم خدا کے زندہ کلام کو آج اپنی زندگیوں کے اوپر لیں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کثرت۔ پڑھو بیٹا۔ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، تم نے اپنے دل کے اندر اس بات کو ٹھہرا لیا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کیا کروں گا؟ اس کو قتل کر دوں گا، اس کو کنویں میں ڈال دوں گا، اس کو تاجروں کے ہاتھ پہ بیچ دوں گا، اس کا نام و نشان نہ رہے گا، اور ہم اپنے باپ کے گھر میں سکھ پائیں گے۔ یہ مقدس یوسف کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، تم نے چاہا کہ میرا برا ہو، تم نے چاہا کہ میری زندگی کے اندر کانٹے بچھ جائیں، تم نے چاہا کہ میں پروگرس نہ کروں، تم نے چاہا کہ میں آگے نہ بڑھوں، تم نے چاہا کہ میرا باپ مجھ سے جو بے لوث محبت رکھتا ہے وہ نہ رکھے۔ گھر میں اگر میرا باپ مجھے پیار کرتا چھوٹا سمجھ کے، تو دوسرے بھائیوں کو شاید حسد سی ہوتی، انہوں نے کہا یہ بڑا لاڈلا بنیا پڑتا جی سارے کو، یہ ٹکانے لائیے پہلے۔ تم نے تو مجھ سے کیا کرنا چاہی؟ اب ارادہ ان کا بدی کا، اب مقصد اس کا نقصان پہنچانے کا، اب ان کے اندر ایک عجیب طرح کی خلبلی مچی ہوئی ہے، اور انہوں نے ویسے کیا۔ انہوں نے یوسف کو مصر جاتے ہوئے تاجروں کے ہاتھوں میں سیرور کر دیا، بیچ دیا۔ بھائیوں کا ارادہ، بھائیوں کی ایک دل کی خواہش کہ ہن ساڈے گھر دے وچ ساڈی گل سنی جائے۔ روبن، اشکان، نفتالی، زبلون، یہ سارے یعقوب مقدس بزرگ یعقوب کے بیٹوں کے نام۔ یوسف، ارادہ کس کا؟ کثرت کس کا؟ کثرت کے لفظی معنی ہے ارادہ، مقصد، پرپس۔ کس کا پرپس پورا ہوتا ہے؟ سچائی کہاں پہ آ کر ٹھہرتی ہے؟ آپ کچھ بھی کر دیں، بائبل مقدس آپ کی زندگی کے ساتھ کام کرتے ہیں، زندہ خدا آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کے وہ خاص پرپس آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اس حوالے کو ذرا پورا کیجیے۔ لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا کثرت کیا تاکہ اسی سے نیکی کا کیا کیا؟ کثرت کیا۔ ارادہ کیا۔ خدا نے
اسی سے نیکی کا قصد کیا جس کے بارے میں پلان بن رہے ہیں، جس کے بارے میں تمام تر منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جس کو گرانے کے لیے ایک پلان گھروں میں سوتے وقت بھائی کام لا کے کہتے ہیں ہوں کی کریے، یہ بڑا بات بھی ہے ان کی گل نہیں ہوتی ہے گھر دے وچ کوئی کام ہوتا ہے ساڈے پیو دے منہ تے ایک ہی نام آتا ہے یوسف کو بلاؤ، یوسف کہاں ہے؟ میں یوسف کو یہ پوشاک دینا چاہتا ہوں، میں یوسف سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں یوسف کے ذریعے سے یہ سارا مال خداوند آگے بھیجنا چاہتا ہوں۔ پریشان ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، گل بنی ہوئی ہے، پڑا کان لا کے جو کریے کی 2-3 کے مقام کے اوپر جو چراغ آیا، بہت بڑی جانور جہاں پہ چڑھتے تھے وہاں پہ یہ واقعہ پیش ہے، اور انہوں نے کیا ان کو سیل کر دیا، اور یہاں پر خدا کے زندہ کلام میں مقدس یوسف کی سٹیٹمنٹ لکھی، ان کا بیان لکھا ہوا کہ تم نے تو مجھ سے کیا کرنا چاہیے مگر وہی قصد پورا ہوتا ہے جو خدا کا ہے، اور خدا نے اپنا ارادہ اپنے مقدس کے اوپر پورا کیا، اور چند سکوں کے عوض بکنے والا عام سا غلام حاکم مصر کہلایا، سب اس کی کس کا ارادہ پورا ہوتا ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں اس لیے نشین کرنا ضروری ہے کہ ہمیں خدا کے پاس اس مقاصد کے لیے بھی جھکنا ہے، اے خداوند تو اپنی نیکی مجھ پر ظاہر کر، اے خداوند تو اپنا ارادہ مجھ پر ظاہر کر، اے خداوند جو میں نکما تھا، اے خداوند جو میں حقیر تھا، اے خداوند بدی میں گرفتار تھا، اے خداوند دنیا کی بھیڑ میں گرفتار تھا، اے خداوند کوئی سمجھ نہیں آتی، مگر تیرا قصد میری زندگی کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ مانگنا خدا سے کیا ہے؟ ہمیں جانا خدا کے پاس ایک خاص مقصد سے ہے، ہم ٹائم نکال کے ہم اپنی تمام تر چیزوں کو وائنڈ اپ کر کے جب خدا کے حضور میں آتے ہیں تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اپنی ہر ایک چیز کو ہیکل کے گیڑ کے بعد چھوڑ کہنے بعد بتی چلے نہیں کپڑے کیوں مقصد کو خدا کے پاس ارادہ خدا کا ہے، تعلیم اس کی، سچائی اس کی ہے۔ انسان جتنا مرضی زور لگا لے، جتنے مرضی کام کر دے، جتنی مرضی وہ منصوبہ بندی کر لے، جتنے مرضی وہ پلان کو کر لے، مگر وہی قصد نیکی کا جو خدا آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، باقی سارے دم چھوڑ۔ ایک بڑی فیمس سی سٹوری تھی، ایک لٹل گرل تھی اور ایک مسجد گرانے سے وہ تعلق رکھتی تھی۔ کرسمس اس کی زندگی کے لیے ایسا تھا تہوار کہ جیسے اس کو ایک نئی طاقت ملتی ہو، جیسے اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہو۔ جیسے ہی کرسمس دا ونٹر سیزن قریب آتا تو وہ بڑی ایکسائٹڈ ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتی، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اکٹھا کرتی، اور جیسے ہی اس کے پیرنٹس اپنے گھرانے کے اندر اس ٹری کو اویزا کرتے جس کے اوپر کرسمس تمام سجاوٹ لگائی جاتی ہے، تو وہ اپنی چیزیں نکال کر لاتی، اندر سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے رکھی ہوتی تو وہ اس ٹری کے اوپر اویزا کرتی۔ ایک لڑکی تھی گھر کے اندر اور 2 اس کے بھائی۔ اب باپ، یہ نیچرلی بات ہے، وہ بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ماں لڑکوں سے زیادہ، یہ نیچرل فیکٹ ہے۔ اب باپ تھا، انہیں جیڑی بھی چیز نہیں آنی نا انہیں چپ کر دوں بس بڑھاوا نے بات دسی سہتی ہو کے کھانا، وہ خوش۔ اب اس کے باپ نے سوچا ہوا کہ میں اس کو ایک بڑی پیاری سی ڈریس لے کر دوں گا جو کرسمس میں پورے خاندان کے اندر ایک اپنی نوعیت کی عجیب اور خوبصورت اور قیمتی ڈریس اس نے اپنی سیلری میں سے سارا سال
पैसे इकट्ठा किए और उसके दिल के अंदर खुदा ने ये बात डाल दी कि तू ऐसे कर, अपनी बेटी के लिए कुछ परचेज कर, बाइंग समथिंग फॉर योर डॉटर। उसने ऐसे ही किया, उसने अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे ना निकाल के ना तो रखने शुरू कर दिए। और जैसे नवंबर खत्म हुआ और दिसंबर बिगन हुआ तो उसने वो पैसे निकाले, वो एक अच्छी शॉप पे गया, उसने उस ड्रेस को परचेज किया और उसको उसने अच्छी तरह गिफ्ट पेपर में गिफ्ट की तरह बना के तो रख दिया। जब वो घर में आया तो उसके बेटों ने उसको देखा, ये वो खास किस्म की चीज है। हमारा बाप हमसे चीजें छुपाता है और हमारी बहन को दे देता है। क्यों ना हम ऐसा करें कि मेरा बाप जो चीज ये लेकर आया है हम इसको चुपके से ले लें और खुद इसको एंजॉय करें। मेरा लगता है इसमें बड़ी इलेक्ट्रिक सी कोई चीज होगी, है लगता है इसमें बड़ी शानदार सी कोई चीज होगी, है अब्बे नूं की पता लगना, साडा भी ते अब्बा है ना, है एकड़ा कल्ला है। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ क्रिसमस आखिरी वीक चल रहा है, 18 क्रॉस कर चुकी है और अगला हफ्ता क्रिसमस का था। तो उसके बाप ने कहा कि ठीक है अब इसको गिफ्ट दे देना चाहिए ताकि ये अपनी फ्रेंड्स को दिखाए, सेलिब्रेट करे और ये खुश हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुश हो। उसने अपने बेटों के लिए भी कुछ ले रखा था मगर उसने जाहिर नहीं किया था। ये नहीं था उसको अपने बेटे अजीज नहीं थे, दोनों अजीज थे। मगर जब हसद और कसद दोनों काम करते हैं, हसद बुराई की तरफ है और कसद उसका इरादा है। ये तलीम है बात, बिब्लिकली लैंग्वेज में इसको कहते हैं द डिफरेंट टू वे, दो मुख्तलिफ रास्ते, हसद और अब उनके बेटों के अंदर क्या था और इरादा किसका पूरा होना था? खुदा ने क्या किया। अब जैसे ही उन्होंने वो चीज को वहां से लिया और उन्होंने उसको खोला तो देखा कि उसके अंदर एक खूबसूरत ड्रेस है जो कि लड़की का है। दोनों परेशान असलीदा की है ना, देखी पा सकने ते ना इनू सॉल्व आउट कर सकने। ये खुदा का की भेद है। खुदा ने उनके ऊपर अपना कसद इस तौर से जाहिर किया कि जो कुछ खुदा की मर्जी जमीन पर पूरी होनी है, जिसको जो जो मिलना है वो मिलना है, कोई भी बंदा हसद करके उसको छीन नहीं सकता। इसीलिए बाइबल कहती है कि तेरी मर्जी आसमान पर पूरी हो, खुदा की मर्जी। और वो बड़ा शर्मिंदा हुए और बड़े सर झुका के वो जाके कहते हैं अब्बा जी ये हमने गलती से चेक कर लिया है, हमने समझा शायद इसमें कोई गाड़ी या कार शायद। कहता बदतमीज हो, तुमने ये क्यों पकड़ा? मैंने बड़ी मेहनत से इस ड्रेस को खरीदा था, आओ हम सब मिलकर जाकर तुम्हारी बहन को ये गिफ्ट देते हैं और उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाए। यीशु मसीह के नाम से। और जैसे ही वो सब जाकर अपनी बहन को और वो अपनी बेटी को वो गिफ्ट देते हैं तो वो बड़ी खुश होती है और उसका मकसद, उसका जो दिल में इरादा होता था हर साल क्रिसमस को इसी तरह सेलिब्रेट करने का, खुदा ने उसको कायम रखा और इस क्रिसमस के ऊपर उसको दुगनी बरकत। कैसे वो अपने इरादे को पूरा करता है, कैसे उसका कसद आगे आगे बढ़ता है, जलाल उसका बड़ा, कुदरत उसकी बड़ी है। खुदा का कलाम सच्चाई से बड़ा हुआ कहता है मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। तुम्हारा पर्पस क्या? इस बात को तलीम को लेकर आगे बढ़ना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। एक छोटा सा वाला नया नामे में से अमसाल की किताब जी, ओल्ड टेस्टमेंट, अमसाल की किताब 29 चैप्टर 10 वर्ष से सीखने वाली खुदा की कलाम की उसका जलाल कैसे कैसे काम करता है। बरकत के वसीले दाखिल होना चाहती है, उसकी रहमत काम करना चाहती है, मगर कसद खुदा के नाम से जब आता है तो जलाल जाहिर होता है।
बंदों के मंसूबे दरे के दरे जाते हैं। हालेलुया। जी पढ़िएगा अमसाल की किताब 29 चैप्टर उसकी 10 वर्ष से, जिसको पहले मिले। हाँ जी पढ़िएगा। खूनरेज लोग कामिल आदमी से कीना रखते हैं। खूनरेज लोग कामिल आदमी से क्या रखते हैं? ये हिकमत है। इंसान मुकद्दस सुलेमान नबी की लिखी हुई हिकमत की किताब कहलाती है पुराने अहदनामे में से। खूनरेज आदमी कामिल आदमी से क्या रखता है? कीना रखता है, अदावत रखता है, एक तरह की दुश्मनी समझ, एक तरह का बैद समझने, एक तरह का चूरो वेख के तो बंदा सैर तो होता है। खूनरेज आदमी, खून बहाने वाला आदमी, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला आदमी। यूसुफ के भाई भी नुकसान पहुंचाते थे, पहुंचाया उन्होंने, मगर खुदा का कसम कायम रहा, इरादा खुदा का कहना। अब यहाँ भी बाइबल में यही लिखा हुआ है कि खूनरेज आदमी कामिल आदमी से क्या रखता है? क्या रखता है? आगे पढ़िएगा। लेकिन रास्तकार उसकी जान बचाने का कसद करते हैं। मगर रास्तबाज उसकी जान बचाने का कसद करते हैं, एक मजबूत इरादा रखते हैं। ये बंदा मेरी जान लेना चाहता है, ये बंदा मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मगर जिसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह के नाम की क्षमा जल रही है, वो पलटकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी नफरत का जवाब अपनी मोहब्बत से दे। ईमान के साथ की तालीम है खुदा की। ऐसे इरादे खुदा इंसानों के अंदर में डाल देता है कि तू नफरत का जवाब नफरत से। कसद खुदा का क्या, पर्पस खुदा का क्या? वो आपको भलाई की तालीम देता है, वो आपको राहत के चश्मों की लैन की तरफ लेके जाना शुरू करता है, जहां से हरदी भी पानी पीती है। दोनों चीजें पानी से रिलेटेड हो जाती है। हरदी भी पानी पी रही है, रात के चश्मों के पास भी ले जाया जा रहा है, ठंडी नदियाँ भी हैं, और उसका कामिल रास्ता है, कसद उसका काम करता है। मगर आपका रवैया क्या है? किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को बेचने का, क्या किसी के साथ किसी की चीज को खुद चुराने का? नहीं। खुदा का कलाम कहता है खूनरेजी करने वाला शख्स कामिल आदमी से कीना रखता है, मगर कामिल आदमी उसकी अंगेंस्ट क्या करता है? वो उसके लिए अच्छा कसद रखता है। वो कहता है कि मैं इसके लिए अच्छा सोचूं, इसके लिए दुआ करूं। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है कि अपने दुश्मनों के लिए क्या करो? है कि ऐसी गल है? इतने कहते हैं जाना किहड़े रस्ते जरा पता करो है, इज्जत बच के दे। ये दुश्मनदारी है, बड़े बड़े घराने तबाह हो जाते, खानदान नस्ल खत्म हो जाए दुश्मनदारी दे विच। मगर बाइबल एक ऐसी तालीम देती है, खुदा का कलाम एक ऐसा अनमोल खजाना है जो कहता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत। अपने दुश्मन, अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको क्या कर? खाना खिला। अगर उसके पास कपड़ा नहीं तो वो भी दे दे। अगर तेरे पास 2 चोगे हैं तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। बाइबल की तालीम, कुरान का इरादा कहाँ तक काम करता है? पढ़िए मुकद्दस ज़करिया आ जाए। मुकद्दस ज़करिया की माल पर लिखी गई अजीज मुकद्दस हाँ जी, ये आखिरी किताबों में से है, इसका मलाकी से पहले है। ज़करिया 8 बाब की 14 पढ़ोगे। अगर 8 ना हुआ पहले 8 पढ़ो, अगर रेफरेंस वही हुआ तो फिर 8 पे रहेंगे, वरना हम 6 पे जाएंगे। 8 की 14 पढ़ो तो फिर पढ़ो। मैं लगता हूँ मेरी आई साइड बेहतर होगी, मुझे लगता है मेरी नस्ल बेहतर होना शुरू होगी, लगता है मैं बादाम खाने शुरू हो। हालेलुया। पढ़ो ज़करिया 8 की 14।
यूं फरमाता है हाँ कि जिस तरह मैंने कैसर किया था, क्या किया था? जिस तरह मैंने क्या किया था? कसरत किया। अब रब्बुल फाज फरमा रहे, अब लफ्ज खुदा के मुंह से अल्फाज होने वाले, अदायगी उसके खिलाफ और इल्हाम खुदावंद जिंदा मुकद्दस से की गई। दोबारा पढ़ो इसे, सुने। क्योंकि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि जिस तरह मैंने कैसर किया था हाँ। कि तुम पर आफत न होगी, मगर जब तुम्हारे बाप हाँ दादा ने मुझे गजबनाक किया और मैंने अपने इरादा से बाज ना रहा, रब्बुल फाज फरमाता है, इसी तरह मैंने अब इरादा किया है कि यरूशलेम और यहूदा के घराने से नेकी करूं। आमीन। क्या करूं? नेकी करूं। सबसे बड़ा कसद खुदा का। अगर आप बनी इसराइल की मिसाल लेते हैं तो खुदा को जब जब बनी इसराइल ने गजब दिलाया, जब जब खुदा को गुस्सा दिलाया, तो खुदा ने कहा कि अब मैं तुम पर गजब भेजूंगा। हेलो पढ़ो, जानो कि मैं खुदा, मैं जो कसद करता हूं, मैं जो इरादा रखता हूं, खुदा ने इरादा किया, ओके, कुछ भी नहीं, सारा कुछ जीरो है। खुदा ने कहा अब मैं बनाता हूं सबसे पहले रोशनी। बाइबल मुकद्दस का पहला अल्फाज, खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को, जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों के ऊपर जुम्बश कर रही थी। ऐसे ही कुछ लिखा। यस, और पहले दिन खुदा ने क्या बनाया? कसरत किया खुदा ने अपने दिल के अंदर इरादा और मुस्तहिद ये यकीन रख लिया कि मैं जमीन के ऊपर नूर को उतारूंगा, रोशनी को उतारूंगा, चानन को उतारूंगा। जिंदगियों के अंदर खुदा की बरकत काम करेगी, उसका जलाल रोशनी की मानद अगर किसी ब्लाइंड के ऊपर आएगा तो उसकी आंखें खुल जाएगी। वही नूर, ये नूर उतारा है, ये कसद खुदा ने इरादा किया, बाद में खुदा ने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया यीशु मसीह की सूरत में। हेलो, ये मेरा इरादा था। बाइबल का भेद बहुत बड़ा है, इतना बड़ा भेद है खुदा के कलाम का कि खुदा ने जो कसद किया ना, वो पहले दिन से था। खुदा ने बाइबल के मुताबिक पहले दिन में खुदा ने अपने नूर को जाहिर किया, पहले दिन में खुदा ने यीशु अल मसीह को जाहिर किया। बाइबल में लिखिए कि मैं दुनिया का मेरी पैरवी, ऐसे ही लिखिए कि नूर की रोशनी, और लिखिए कि उधर खाते ये खुदा नूर है और उसमें जरा भी तरीकी ये कसद है। मकसद समझने का, आप देखिए ना, खुदा ने बेमकसद नहीं बनाया किसी चीज। अगर खुदा ने आपको पैदा किया है तो उसके पीछे खुदा का मकसद, एक खानदान बनेगा, बाल बच्चे, शौहर और एक जिंदगी से पूरा घराना खुदा ने तरतीब, मकसद आ गया। क्या मकसद है खुदा? यहाँ पे देखें, कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनी, कोई भी उसका वक़्त बेमकसद नहीं, कोई भी उसकी सच्चाई वक़्त से हटकर नहीं। खुदा ने कहा ऐसे कुछ, खुदा ने फिजा से फिजा को जुदा की, फिजा बना, पानी से पानी को जुदा की। खुदा ने नई अकबर अस्कर बनाए, खुदा ने अशरात, रेंगने वाले आबी जानवर, तमाम तर सिस्टम खुदा ने इस तरह जमीन के ऊपर बनाया, और एक कसद रखकर, एक मकसद रख कर कि जो मैं करूंगा उसके अंदर ये होगा कि भलाई लोगों के अंदर दाखिल हो जाएगी। लोग मेरी क्या करेंगे? समझेंगे। मगर यहाँ पे बहुत सारी खेलें आगे शुरू हो गई, किसी ने अपना जोर लगाया, किसी ने अपना जोर लगाया, और खुदा का मकसद आज भी उसके लोगों के साथ काम करता है। अगर बुरा करोगे तो जैसे हवाला पढ़ा गया बाइबल में, बनी इसराइल की तरह खुदा गजब नाराज करेगा, और अगर तुम अच्छा करोगे तो खुदा अपना अच्छा मकसद तुम पर जाहिर करेगा, तुम्हें तरक्की देगा, तुम्हारी प्रोग्रेस होगी, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम खुदा में तरक्की करोगे, तुम्हारा घराना तरक्की करेगा।
आटे तिल की मट्टियों के ऊपर बरकत रहेगी। रुपया पैसा होगा, किसी चीज की इस तरह की नहीं बल्कि इस तरह की बरकत आपके पास है। हालेलुया। आगे चलते, अभी टाइम निकालिए द बुक ऑफ एक्ट, अमाल की किताब, 3rd चैप्टर, 3रा भाग। पढ़िए 3रे बात की बात, अमाल की किताब, नए सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ऐ इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो, गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यीशु को जला दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का फैसला किया तो तुमने पिलातुस ने उसे छोड़ देने का फैसला किया। दोबारा पढ़ो, कोई भी बाइबल का एक लफ्ज भी गलत नहीं अदा होगा। हमारा पर्पस तरीन खुदा की बरकत और खुदा के इल्हाम को आपकी ज़िंदगी के ऊपर लेना है। बरकत उस वक्त नाज़िल होती है जब आप सच्चाई से खुदा के पास आते हैं। किस कंडीशन में आते हैं? किस कंडीशन में आते हैं? सच्चाई से। दोबारा एक लाइन ऊपर, दोबारा जहाँ से छोड़ा। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसद किया, हाँ। तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। ठीक है। तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर कदूस और खूनी दोनों आ गए, जिसका पहले जिक्र है। खून रेज और रास्तबाज आपस में क्या रखते हैं? कीना। तुम लोगों ने ये कहा कि बराबा को छोड़ दो, तुम लोगों ने इस कसद को जाहिर किया, बराबा को छोड़ दो। उस बेऐब बरे, उस जलाल, उस कदूस को, उस नूर को तुमने कहा कि तुम इसको सलीब दो। जो मुंसिफ था, जो इंसाफ कर रहा था, जिसके हाथ में ये इख्तियार था कि वो ये ऑर्डिनेंस अगर लिख कर दे देता है अपने तमाम इंचार्ज को कि तुम यीशु अल मसीह को छोड़ दो और बराबा को दोबारा जेल में डाल दो, तो वैसा ही होना था। मगर पिलातुस का कसद क्या था कि वो यीशु को छोड़ दे। उसको उसमें कोई भी ऐब नजर नहीं आ रहा था, कोई भी उसमें बुराई नजर नहीं आ रही थी। ऐनी चार बंदे ने गल शुरू कर दी, ये अपने आप को बादशाह कहते, ये यूदिया का बादशाह। कहाँ से निकलती है बुराई? लोगों से, चरवाहों से, क्या बैठी हुई बैठकों से, सिर जोड़ जोड़ के मंसूबे करने वालों की महफिलों से। अनु फड़ाओ, ये बड़ा अब्बे का लाडला बन है। कहाँ से बुराई निकलती? वही से निकली। सलीब तो यीशु को आवाज़ें कसी, बराबा को छोड़ा, यीशु को। मगर जो खुदा का वादा था वो पूरा हुआ। वो मेरी खातिर दुख उठाएगा, वो अपने लोगों की खातिर दुख उठाएगा, वो मसलूब होगा और तीसरे दिन जिंदा आसमानी खुदा बाप कब्र में से जी उठेगा। खुदा बाप की दान। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का पाक रूह है जो तुम्हें बोलता है। यकीनन खुदा बोलता है। खुदा अपने खादमों के वसीला से हमसे हम कलाम होता है। तो आइए अपने स्वरों को झुकाते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जो